میرا نام تسلیم ہے۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ شادی کے کچھ عرصے بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور آج میں زندگی کے ایک ایسے موڑ پر کھڑی تھی کہ مجھے خود کی ذات سے بھی نفرت ہو رہی تھی۔ میں سادگی سے تیار ہو کر اس کمرے میں بیٹھی تھی۔ میرا کچھ دیر بعد نکاح ہو رہا تھا۔ میرے دماغ میں اپنی بیٹیوں کی فکر سوار تھی۔ میں ویسے تو گھر سے آتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو کھانا بنا کر دے کر آئی تھی۔ میری بڑی بیٹی اب 15 برس کی ہو چکی تھی اور وہ گھر کا کام کاج کر لیتی تھی۔ جب بھی میں 5 روز کے لیے گھر سے غائب ہوتی تو اپنی بیٹی کو سمجھا دیتی تھی تو وہ گھر کا کام سنبھال لیتی تھی اور اپنی چھوٹی تینوں بہنوں کو کھانا وغیرہ بھی بنا کر دے دیتی تھی۔ مگر میں ماں تھی، فطری طور پر میرے دماغ پر پھر بھی ان کی فکر سوار رہتی تھی۔ میرا مسلسل ہر دوسرے روز گھر سے غائب ہونا میرے ارد گرد والوں کو اور بچوں کو تنگ کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ لوگ اس معاملے میں دخل دیتے میں یہ سب کام چھوڑ دینا چاہتی تھی۔ آج آخری بار میں نکاح کے لیے آئی ہوئی تھی۔ میرا نکاح ایک بوڑھے مرد کے ساتھ ہو رہا تھا جس کی عمر 65 سال کے قریب تھی۔ میں نے اس مرد کو نہیں دیکھا تھا۔ رازداری سے ہمارا نکاح کروانے والے ایجنٹ نے مجھے اس بوڑھے کے بارے میں تفصیلات بتائی تھی۔ فون پر کہنے لگا، بوڑھا 7 روز کے لیے 10 لاکھ دینے کو تیار ہے، بس اسے ایک صحت مند توانا عورت کی ضرورت ہے۔ میں نہیں جانتی تھی اس بوڑھے کی کیا مجبوری تھی، وہ کیوں عارضی نکاح کرنا چاہتا تھا، مگر یہ نکاح میری اشد ضرورت تھی۔ 10 لاکھ کا سن کر میں فوراً نکاح کے لیے تیار ہو گئی۔ میں اب ویسے بھی کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر کے گھر چلانا چاہتی تھی اور ہر دوسرے تیسرے روز پیسہ بنانے کے لیے کسی انجان مرد کے ساتھ اتنے دن کا نکاح کرنا اب میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ میں اپنے مرحوم شوہر سے وفاداری کی ہر وقت دعا کرتی تھی۔ اس کی موت کے بعد دوسری شادی نہیں کی اور اپنی 4 معصوم بیٹیوں کو بھی اتنی تنہا پالا کہ دوسری جانب میں اتنی مشکل کا شکار ہو چکی تھی کہ پیسہ کمانے کے لیے ایک تو کیا نہ جانے کتنے انجان مردوں کے ساتھ نکاح کر کے میں اپنے مرحوم شوہر سے بھی بے وفائی کر رہی تھی، بلکہ خود میرا دل مردہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے ہر قسم کے مردوں کو برداشت کرنا پڑتا تھا۔ 5 روز کے لیے مجھے اپنے نکاح میں لینے والے چند مرد تو ایسے تھے جن کی دی گئی تذلیل مجھے بھولتی نہیں تھی۔ میں نہایت خوبصورت عورت تھی، بالکل جوان اور اپنی عمر سے کہیں چھوٹی لگتی تھی۔ کوئی مجھے دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں 35 سال کی تھی۔ میں اب بھی چاہتی تو کسی مرد سے شادی کر کے عزت سے اپنا گھر بسا سکتی تھی، مگر میں کسی مرد سے ساری عمر کے لیے جڑنا نہیں چاہتی تھی۔ مجبوراً میں نے یہ راستہ اختیار کیا تھا، مگر اب میں تھک چکی تھی۔ اس بوڑھے کے بارے میں سنا تو یہی سوچ کر چلی آئی کہ 10 لاکھ مل جانے پر میں کمائی کا کوئی مستقل انتظام کر لوں گی۔ میں نہیں جانتی تھی میری یہ آخری کوشش میری سنگین غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ میں شروع میں اپنے مجبور ہونے کے باوجود بہت محتاط رہی تھی اور ہر بار نکاح کرنے سے پہلے مرد کے بارے میں اچھے سے چھان بین کر لیتی تھی، مگر اس بار جلد بازی میں اور پیسہ کمانے کی لالچ میں نے بوڑھے کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہ کی اور فون سنتے ہی اگلے روز یہاں آ گئی۔ میں نکاح ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں الجھی ہوئی تھی۔ اس بار 5 روز کے بجائے 7 روز کی بات ہوئی تھی۔ میری بڑی بیٹی بہت کم گو اور سر جھکا کر رہنے والی بچی تھی، مگر چھوٹی تینوں کو اب میرا اتنے دن سے گھر باہر رہنا کھٹکنے لگا تھا۔ وہ مجھ سے سوال کرنے لگی تھی اور ناگواری کا اظہار کرتی تھی۔ میں جانتی تھی بچیاں اب اسکول جانے والی ہو گئی تھی، ان کی عمر بڑھ چکی تھی۔ میرا اتنے دن کے لیے غائب ہو جانا میری بیٹیوں کو شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ میں کسی ناجائز کام میں مبتلا ہوں، مگر میں نے اپنی بیٹیوں کو کبھی حقیقت نہیں بتائی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی نکاح متا حلال عمل نہیں ہے۔ پہلے سے متعین مدت طے کر کے کیا جانے والا نکاح سراسر ناجائز ہوتا ہے، اور نکاح متا میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ وقت مقرر کر لیا جاتا ہے اور اس مقررہ وقت پر خود بخود طلاق ہو جاتی ہے۔ نکاح متا کو اسلام سے قبل جائز نکاح مانا جاتا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر نکاح متا کو ناجائز اور قیامت تک حرام قرار دیا تھا۔ اپنے دل کی تسکین اور خود کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے میں نکاح متا کرتی تھی، مگر میرے دل میں اندر کہیں خیال اٹھتا تھا کہ میں نکاح کے نام پر وہی گناہ کر رہی تھی جس گناہ سے بچنے کے لیے میں خود کو ہر بار 3 روز کے لیے ایک انجان مرد سے باندھ لیتی تھی۔ میرے حالات میری نظر میں اتنے برے تھے کہ میرے پاس نکاح سے پیسے کمانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا، مگر یہ خود کو بری کرنے کی کوئی معقول دلیل نہیں تھی۔ میری بیٹیاں ذہین اور آج کے دور کی لڑکیاں تھیں۔ اگر میں انہیں اس بارے میں بتا بھی دیتی تو وہ اس پر سوال اٹھاتی، جو کام ناجائز ہو اسے چاہے جس مجبوری میں بھی کیا جائے وہ ناجائز رہتا ہے۔ اس لیے میں کبھی چاہ کر بھی اپنی بیٹیوں کو یہ سچ نہیں بتا پائی کہ میں بس تعلقات نہیں بناتی تھی، بلکہ انجان مردوں کے ساتھ اتنی راتیں گزارنے کے لیے نکاح متا کرتی تھی۔ دوسرے الفاظ میں یہ بھی جسم فروشی تھا، اور یہی بات مجھے زبان بند رکھنے پر اکساتی تھی۔
हालांकि मैं अपनी बेटियों की आंखों में अपने लिए शक देख चुकी थी। उन्हें अपनी माँ फहाश लगने लगी थी। मैं परेशान से सोचों में गुम थी। निकाह करवाने वाले मर्द ने मुझे बुलाया। मैं सर झटक कर उसके बुलाने पर उठकर चली गई। निकाह हुआ तो मायदे के ऐन मुताबिक मुझे रकम दी गई। मैंने निकाह होते ही सुकून का सांस भरा। पहली बार मुझे 4 रोज की बजाय 7 रोज के लिए एक अनजान मर्द के पास रहना था, और मर्द भी ऐसा जिसे मैंने देखा तक नहीं था। मैंने निकाह के दौरान भी अपने होने वाले शोहर को नहीं देखा था, क्योंकि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे सारी उम्र उसके साथ रहना नहीं था। मेरी दिलचस्पी उन पैसों में थी जो मुझे मिल चुके थे। निकाह की मुद्दत पा चुकी थी। 7 रोज के बाद मैं इस बोझ से आज़ाद हो जाती, तब अपने घर जा सकती थी। मैं वक्त से पहले आज़ादी का सोचते हुए मतलूबा गाड़ी में जाकर बैठ गई। जब तवज्जो दी तो ठटक गई। गाड़ी में कोई जवान लड़का मौजूद था। पूछने पर उसने बताया कि वो उस बूढ़े का ड्राइवर है। कहने लगा, मालिक तो निकाह होते ही दूसरी गाड़ी में घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है कि आपको घर पहुंचाऊं। मैं हैरान हो गई। मुझे हमेशा मर्द खुद ले जाते थे, और ज्यादातर घर ले जाने की बजाय किसी होटल या आरजी ठिकाने का इंतखाब करते थे। उस बूढ़े ने मुझे अपने साथ घर ले जाना गवारा नहीं किया था। उसका ड्राइवर मुझे गाड़ी में घर ले गया। मुझे निकाह के बाद पहली बार बूढ़े की ये हरकत ठिठकने पर मजबूर कर गई थी। मैंने ये सोचकर तवज्जो नहीं दी कि अमीर मर्द के लिए यकीनन मेरे जैसी औरत को अपने साथ लेकर घर तक जाना आसान नहीं होगा। पहली बार मेरे दिमाग में ये सवाल आया था कि आखिर बूढ़े ने मुझसे निकाह क्यों किया था। अगर उसे बाकी मर्दों की तरह वक्त गुजारी और तस्कीन चाहिए होती तो यकीनन वो मुझे किसी होटल में ले जाता और चंद रोज गुजारने के बाद छोड़कर चला जाता। मगर उसका ड्राइवर मुझे बाइज्जत तरीके से घर पहुंचा गया। मैं उस आलीशान घर में दाखिल हुई तो एक और मुलाजमा ने मुझे रास्ता दिखाया और एक कमरे तक पहुंचाया। मैं हर दूसरे कदम पर हैरान हो रही थी। मुझे वहाँ की मुलाजमीन ऐसे एहतराम दे रहे थे जैसे मैं उस घर की मालकिन हूँ। मैं ये सब समझ नहीं पा रही थी। मैंने उस इज्जत और एहतराम को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मैं उस घर में चंद रोज के लिए आई थी। मुझे वापस लौट जाना था। मगर कमरे में दाखिल होते ही मेरी नजर सामने मौजूद शख्स पर पड़ी तो एक लम्हे के लिए मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो बूढ़ा और बदसूरत मर्द था। उसके चेहरे पर चीचक के निशानात थे। एक के बाद दूसरी नजर उसके चेहरे पर डालना मुश्किल थी। मेरा दिल एक लम्हे के लिए लर्जा था। कमरे में सिर्फ यही बूढ़ा मौजूद था, जिसका साफ मतलब था कि मैं उसी के निकाह में आई थी। मुझे अब उसके सामने न आने की हरकत समझ आई थी। वो नहीं चाहता था कि मैं उसे देखकर खौफ का शिकार हो जाऊं। बूढ़े ने मुझे बैठने का कहा तो मैं सर झुकाकर एक तरफ बैठ गई। मेरा ये सोच सोच कर दिमाग खाली होने लगा कि मुझे इतने रोज इस बूढ़े के साथ गुजारने हैं, जबकि यहाँ मैं एक लम्हे के लिए भी उसकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे देखने के बाद मेरे दिल में अजीब सा खौफ और कराहत पैदा हुई थी। हालांकि ये आर्ज़ी निकाह था और मैं जानती थी कि मुझे चंद रोज बाद बूढ़े से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता। मैं आम सी औरत थी। मैंने हर उम्र के हर शक्ल और सूरत वाले मर्द के साथ वक्त गुजारा किया, मगर इस बूढ़े के चेहरे पर अजीब से निशानात थे जो उसे बहुत खौफनाक बना रहे थे। मैं 7 रोज उसके साथ गुजारने का सोचकर पागल हो रही थी। नहीं जानती थी कि कितनी बड़ी गलती कराई थी और अब मेरा क्या अंजाम होने वाला था। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता तो शायद मैं उस घर में कदम रखने से पहले ही भाग जाती। बूढ़े ने मुझे चंद बातें की। वो कहने लगा, मैं बहुत असूल परस्त इंसान हूँ। ना मैं अपनी मर्जी के खिलाफ कोई काम बर्दाश्त करता हूँ, ना ही मैं अपनी बात की नफी बर्दाश्त कर सकता हूँ। अगर मेरी बात से इनकार किया जाए तो मैं सख्त तरीन सजा देता हूँ। मैं बिल्कुल रहम नहीं खाता, इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही रोज बता रहा हूँ। बूढ़े की बात पर मैं परेशान हो गई। उसकी असूल परस्ती का तो मुझे यहीं से अंदाजा हो गया था कि वो चंद रोज के लिए आई मेहमान औरत को भी अपने असूल और घर के तौर तरीके बता रहा था और मुझे पहले दिन ये समझा रहा था कि मुझे कैसे इस घर में रहना होगा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो मुझे निकाह मता करके नहीं लाया था, बल्कि लोंडी बनकर मैं उसके घर आई थी। मैंने उसके लहजे को शिद्दत से महसूस किया था। हालांकि मैं पहले भी ऐसे मर्दों के साथ वक्त गुजार चुकी थी। कुछ मर्द मेरे साथ बिल्कुल बांदियों की तरह सलूक करते थे। दोस्त जमाना और तजलील करना उनके मशागिल में शामिल होता था, मगर उस बूढ़े का मुझ पर इस तरह से हुक्म जिताना मुझे नागवार गुजर रहा था। मेरा दिल चाहा मैं उसे टोक दूं, उसे बताऊं कि मैं उसके घर सिर्फ 7 रोज के लिए आई हूँ और ये सिर्फ मेरी मजबूरी नहीं थी, क्योंकि उस बूढ़े की भी जरूरत थी, वरना मैं कभी उसके घर में मौजूद ना होती। मगर उसका इतना रोब और दबदबा था कि मैं उसके आगे कुछ बोल नहीं पाई और सर झुकाकर सब सुनती रही।
मैं तब उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाई थी। मेरा दिमाग तो अपने घर पर अटका हुआ था। मैं जल्द इस बूढ़े के घर से आज़ाद होने का सोच रही थी। मुझे तलाक की कोई फिक्र नहीं थी। निकाह मता में जहाँ मुतय्यन मुद्दत के बाद खुद ब खुद हो जाती है, वही अगर मर्द तयशुदा वक्त से पहले उकता जाए और अगर औरत को छोड़ दे तो तब भी औरत फारिग हो जाती है। मैं दिल में दुआ करने लगी कि इस मर्द का मुझसे जल्द दिल भर जाए। हालांकि मेरी सोच बिल्कुल नामुमकिन थी। मैं बेहद खूबसूरत और जवान औरत थी। हो ही नहीं सकता था कि इस बूढ़े जैसा बदसूरत मर्द मुझे वक्त से पहले आजाद करता। उसे देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि वो मुझे दी गई रकम में से पाई पाई का हिसाब मुझसे लेगा, और उस बूढ़े के बारे में मेरी सिर्फ यही सोच बिल्कुल सच साबित हुई थी। अपने घर के तौर तरीके समझाकर उस बूढ़े ने मुझसे अपने पैसे के लिहाज से खिदमत हासिल की। एक दिन में मेरे होश ठिकाने लग चुके थे। वो मुझे इंसान की बजाय कठपुतली समझता था। मेरे इनकार को किसी खातिर में नहीं लाया जाता था। मेरे बेजार पर उल्टा सजा देने के लिए उसका रवैया मुझसे मजीद बदतर हो गया। उसे महसूस हो गया कि मैं उससे कराहत का शिकार हूँ। ये बात बूढ़े के लिए तौहीन साबित हुई। वो पहले रोज मुझ पर कुछ मेहरबान हुआ, मगर उसके बाद उसके अंदाज में सख्ती आती चली गई। वो मुझसे बात ऐसे करता जैसे मैं उसकी जरे खरीद गुलाम हूँ। मेरी उकताहट बढ़ रही थी। बूढ़े का रवैया दिन ब दिन अजीब होता जा रहा था। उसकी हरकतें बहुत मशकूक होती थी। उसके रवैये के बरक्स जब उसने मेरे लिए खूबसूरत और शौक रंग वाले लिबास मंगवाए तो मैं ठटक गई। चंद रोज के लिए आई औरत के लिए आखिर वो मर्द ये सब क्यों कर रहा था, जबकि उसका रवैया मेरे लिए इतना तल्ख आमेज होता था। मगर वो कहने लगा, मैं तुम्हें अच्छी और खूबसूरत लिबास में देखना चाहता हूँ। मैं बहुत हसीन थी। मेरी खूबसूरती की वजह से वो बूढ़ा मुझे मजीद सजाने और सिंगार करवाने में दिलचस्पी लेने लगा। बूढ़े की फरमाइश पर मैं घबरा गई। मुझे उससे इतनी उलझन होने लगी थी कि मैं उसकी खातिर बेहतरीन लिबास पहनने के तस्वुर से ही डरने लगी। मुझे उस बूढ़े से अपने हुस्न की ना तारीफ चाहिए थी, ना ही मुझसे उसका वजूद बर्दाश्त हो रहा था। मैं बुरी तरह फंस चुकी थी। मगर अब मैं जानती थी कि अगर मैंने इस बूढ़े को इनकार किया तो इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। इसीलिए बिना बहस किए मैंने एक लिबास पहन लिया। वो निहायत महंगा गहरे रंग का लिबास था। खूबसूरत लिबास ज़ेबे तन करते ही मेरा हुस्न और दिलकशी मजीद निकल कर सामने आ गई। अपने शोहर की वफात के बाद मैंने हमेशा हल्के रंगों के लिबास पहने थे। मेरा लिबास सादा और बहुत सस्ता होता था। मैं एक बदरंग सी चादर ओढ़े रखती थी। हर बार जब मैं पैसों की खातिर निकाह करती थी उसके लिए एक ही लाल रंग का लिबास रखा हुआ था। हर बार वही लिबास पहन पहन कर अब वो लिबास भी अपना रंग खो चुका था। बूढ़े का दिया लिबास पहनकर मैं बहुत खूबसूरत लगने लगी थी। वो मुझे अजीब नजरों से देखने लगा, फिर मुस्कुराते हुए अजीब से लहजे में बोला कि मैंने तुम्हें बगैर किसी वजह के नहीं चुना था। कहने लगा, उस एजेंट ने जब तुम्हारी तस्वीर दिखाई तो तुम्हारा यही हुस्न और कशिश मुझे मजबूर कर गई कि मैं तुम्हें इतनी महंगी कीमत देकर अपने घर ले आया हूँ। मैंने उसकी खुशी पर सर झटक दिया। मेरे पास अब 2 रोज बचे थे। उस बूढ़े के 2 दिन के लिए मुझे ढेरों खूबसूरत लिबास देने के पीछे क्या वजह थी मुझे समझ नहीं आई। वो 2 रोज मुझे खुश रंग लिबास में सजा सवरा देखकर खुश होता था, और अपनी उसी खुशी में जब वो मुझे तवज्जो देता तो मैं गनगाने लगती थी। मेरा दिल उससे अब बुरी तरह से बेजार हो चुका था। मुझे 2 दिन भी एक तवील अरसा महसूस होने लगा था। मैं सर झुका कर रखती थी और कोशिश करती थी बूढ़े को गुस्सा न दिलाऊं और ये 2 दिन सुकून से गुजारूं। मैंने जैसे तैसे उस बूढ़े को बर्दाश्त किया और 2 रोज के बाद तैयारी बांध ली। अब अपने पैसों के अलावा मैंने उस बूढ़े का दिलाया कोई भी सामान अपने साथ रखना गवारा नहीं किया। उसके दिए तोहफे तहाइफ में किसी सूरत कबूल नहीं कर सकती थी। मैंने 2 दिन इतने महंगे लिबास भी निहायत मजबूरी में पहने थे, क्योंकि मैं उस आलीशान घर में रिहाइश के आखिरी दिन मुश्किल नहीं बनाना चाहती थी। मगर मेरे होश तो तब उड़ गए जब मैं उस घर से निकलने लगी तो मुझे दरवाजे पर ही मुलाजिम ने रोक लिया। बूढ़ा इस वक्त घर पर नहीं था। मैंने गुस्से से चौकीदार को देखा। वो अपने मालिक के निकाह मता से वाकिफ नहीं था। शायद उसे लगता था कि मैं बाकायदा शादी करके इस घर में आई हूँ। मैंने चौकीदार को समझाने की कोशिश की, मगर उसने कहा कि मुझे अपने मालिक की तरफ से ऐसा कोई हुक्म नहीं मिला, इसीलिए मैं तुम्हें इस घर से बाहर कदम नहीं रखने दूंगा, वरना मेरी नौकरी भी जा सकती है। मैं जब्त करके रह गई। मैं पहले ही इतनी रातें उस बूढ़े मर्द के साथ गुजार चुकी थी। वो मेरा 7वां दिन था और निकाह में वक्त के हिसाब से मैं उस रोज सुबह अपने घर वापस जा सकती थी। मगर चौकीदार मुसलसल बहस करता रहा और एक तरफ कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसने मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला। मैं बेबसी से वापस अंदर चली गई और बूढ़े का इंतजार करने लगी। पूरा दिन गुजर कर जब बूढ़ा घर लौटा तो मैंने संजीदगी से दरख्वास्त की कि वो अपने चौकीदार को बोल दे वो मुझे घर से जाने दे। मैंने कहा, मेरे घर में मेरी बेटियां अकेली हैं, मेरा इंतजार कर रही होंगी, मेरा घर जाना बहुत जरूरी है।
वैसे भी मेरा वक्त पूरा हो चुका है। मैंने जितनी रकम ली थी उतना वक्त गुजार लिया है। मेरी बात पर बूढ़ा इत्मीनान से मुझे देखता रहा और तब उसने मुझे जवाबन जो बात की वो मेरे होश उड़ा कर रख गई। कहने लगा, मैंने तुमसे निकाह मता नहीं किया, तुम्हारी नजर में ये आर्जी निकाह था और मुद्दतें हुई थी, मगर मैंने ऐसा कुछ तय नहीं किया। मैंने ये निकाह हमेशा के लिए किया था और अब तुम मेरी बीवी हो, इस घर से बाहर कदम नहीं रख सकती, ना ही मैं तुम्हें कभी इस घर से जाने की इजाजत दूंगा। मेरे सर में धमाके होने लगे। मैं हक्का बक्का से उस चीचक ज़दा चेहरे वाले बूढ़े मर्द को देख रही थी। मुझे उस रोज पहली बार उसका इत्मीनान समझ आया था। वो इसीलिए मेरे लिए इतनी खरीदारी कर रहा था और अपने घर के असूल मुझे याद करवाता रहा था, क्योंकि वो मुझे हमेशा के लिए अपने घर लाया था। मैंने चीखते हुए बूढ़े से कहा, मुझे उसकी सोच से कोई लेना देना नहीं है। मैंने पैसों पर निकाह मता किया था। मेरी मासूम बच्चियां हैं, मुझे उनको पालना होता है। मैंने कहा, मैं तुम्हारी सोच की पाबंद नहीं हूँ। अगर तुम्हें मुझसे हमेशा के लिए निकाह करना है तो उसके लिए मुझे बाकायदा रिश्ता भेजकर निकाह के लिए आमादा करना होगा। मेरी बात पर बूढ़ा हंस पड़ा। कहने लगा कि अब मुझे धमकाने का कोई फायदा नहीं है। निकाह करके तुम आ चुकी हो। मेरे मुलाजमीन गवाह हैं कि मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाकर इस घर में लाया हूँ। पहले रोज से ही मैंने इन सब से कह दिया था कि अब इस घर की मालकिन तुम हो। अगर तुम चाहो तो निकाह नामा भी उठा कर देख सकती हो, उस पर कोई मुद्दतें नहीं हुई थी। वो कहने लगा, ये तुम्हारी गलती है कि तुमने लापरवाही से आंखें बंद करके उस एजेंट पर यकीन कर लिया जिसने हमारा निकाह करवाया था, क्योंकि मैंने उससे पहले साफ अल्फाज में बता दिया था कि मुझे बुढ़ापे का सहारा एक सेहतमंद जवान बीवी चाहिए। मैं 2 मर्दों के हाथों बेवकूफ बन चुकी थी। वो बूढ़ा मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था और वहां से उठकर चला गया। मैं अकेली चीखती चिल्लाती रह गई। मुझे अपनी बेटियों की फिक्र सता रही थी। ना जाने वो 7 रोज उन्होंने कैसे गुजारे थे। मोहल्ले वाले अच्छे थे, मगर मैं इस मामले में किसी पर यकीन नहीं कर सकती थी। रोते हुए अपने बाल नोचने लगी, अपनी हरकत पर पछताने लगी। निकाह के नाम पर मैं हर बार घर से गायब होती थी और हर वक्त मैं इसी तरह खौफ का शिकार रहती थी कि ना जाने घर वापस जाने पर मेरी बेटियां मुझे किस हाल में मिलेंगी। हर बार मेरी बेबसी और दुआओं पर अल्लाह ने मेरी बेटियों की हिफाजत की थी, मगर मैं सबक हासिल करने की बजाय अगली बार फिर से जो मर्द ज्यादा पैसे की ऑफर करता मैं उससे निकाह करके चल पड़ती थी। इस बार भी मैंने तौबा करने की बजाय एक आखिरी बार वो नाजायज निकाह करने की ठान ली थी, मगर शायद मेरी पकड़ हो चुकी थी। बूढ़ा कुछ सुनने को तैयार नहीं था। मैं उसकी मिन्नतें करती रही। वो बहुत मुश्किल से बस इतना ही माना। कहने लगा, मुझे घर में ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है। अगर तुम चाहो तो अपनी बेटियों को इस घर में ला सकती हो, मगर पहले से समझा देना कि वो मेरी नजरों के सामने नहीं आएंगी और एक कमरे में खामोशी से रहेंगी। मैं तुम्हें महाना इतना खर्च देता रहूंगा कि तुम अपनी बेटियों को अच्छी जिंदगी दे सको, मगर इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी बेटियों को उस बूढ़े के घर में कभी लाना नहीं चाहती थी। मैं बेबसी से चीखती रही, उसे धमकाती रही, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ था। वो मामला ऐसा था कि मैं पुलिस का भी सहारा नहीं ले सकती थी। अगर मैं किसी तरह बूढ़े के घर से फरार हो जाती तो तब भी मैं मदद के लिए किसी को पुकार नहीं सकती थी, क्योंकि निकाह मता काम एक ऐसा है, कुछ लोग तो इसे निकाह ही नहीं कहते। चंद गिने चुने शहरों में निहायत राजदारी से किया जाता है। लोगों को इस बारे में कोई खबर नहीं। मैं और किसी के बारे में नहीं जानती थी, मगर मैं उस एजेंट के साथ मिलकर निकाह मता करती थी। अगर मैं उसका नाम पुलिस के सामने ले लेती तो बूढ़े की बजाय मुझ पर ही केस बन जाता। वो बूढ़ा भी ये सब जानता था, इसीलिए वो मुतमईन था कि मैं सिर्फ पिंजरे में कैद पंछी की तरह फुड़फुड़ा सकती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। मैं अपनी बेटियों को इस जहन्नुम में नहीं लाना चाहती थी। उस बूढ़े को कबूल करना मेरे लिए अजियत थी। वो मुझ पर जबरदस्ती अपना हक जताने लगा। मैं एक कमरे में कैद होकर रह गई। 7 रोज मैंने सिर्फ इसीलिए उसे बर्दाश्त किया था। उससे छुटकारा हासिल करने के बाद मैं सारी जिंदगी पलट कर उसे नहीं देखूंगी। वो मुझे किसी खिलौने की तरह इस्तेमाल करता रहा और मैं खामोशी से गुलाम बनी रही कि ये चंद रोज की परेशानी है। मैं नहीं जानती थी कि वो बूढ़ा मुझे हमेशा के लिए अपने इस आलीशान घर में कैद कर चुका है। चंद रोज मैं गुस्से से और नफरत का इजहार करती रही, अपने घर की जिद करती रही, मगर उस बूढ़े के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वो मुझे उन पसंदीदा मलबूसात में सजा सवर कर किसी गुड़िया की तरह अपने सामने बिठाए रखता था। अगर मैं कभी गुस्से और नफरत से इनकार करती तो वो मुझे पागलों की तरह मारने लगता था। उसके दिल में वाकई रहम नहीं था। मैं चंद दिनों में ही थक गई। कमजोर सी औरत थी, गलती कर बैठी थी। अपनी गलती की सजा भुगतने के अलावा अब कोई चारा नहीं था। मैं समझ गई
وہ بولا مجھے کبھی آزاد نہیں کرے گا۔ مجھے ایک ملازم نے اس کے بارے میں سب بتا دیا تھا۔ اس کی پہلی بیوی بھی میری طرح بہت خوبصورت تھی۔ وہ نفسیاتی بوڑھا اسے بھی ایسے ہی سجا سنوار کر کسی کھلونے کی طرح استعمال کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ ہر حکم اور ہر بات پر سر جھکا کر رہے۔ ملازمین نے بتایا کہ بوڑھے کی بیوی کسی روبوٹ کی طرح اس کے ساتھ رہی۔ اس کے 3 بیٹے ہوئے اور پھر وہ عورت اس قید میں ذہنی اذیت کے شکار ہو کر مر گئی تھی۔ بوڑھے نے اپنے بچوں کو بہت اچھی تعلیم دی، پڑھایا لکھایا، مگر وہ جوان ہوئے تو اپنے باپ کو چھوڑ کر ملک سے باہر چلے گئے اور واپس کبھی پلٹ کر نہیں آئے۔ وہ بوڑھا اکیلا تھا اور سہارے کا متلاشی تھا۔ میری لالچ مجھے اس بوڑھے تک لے آئی۔ اس نے مجھے اسی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر 10 لاکھ کا لالچ دیتے ہوئے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر قید کر لیا تھا۔ میں اکیلے میں پاگلوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتی رہتی تھی، ذہنی اذیت کا شکار ہونے لگی۔ اس بوڑھے کے گھر مجھے 20 روز گزرے تو میری ضد دم توڑ گئی۔ میں نے اس کی شرط مان لی اور اپنی بیٹیوں کو وہاں بلوا لیا۔ میں اس کی ضد میں بیٹیوں کو اکیلے گھر میں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس کی اتنی مہربانی کافی تھی کہ اس نے مجھے بیٹیوں کو گھر میں رکھنے کی اجازت دے دی۔ بوڑھے نے اپنے سامنے ہار مان لینے پر مجھ سے پتہ لے کر میری بیٹیوں کو ہمارے گھر سے لینے بھیج دیا تھا۔ وہ چاروں بچیاں بوڑھے کے گھر پہنچی تو بری طرح سہمی ہوئی تھی اور خوفزدہ نظروں سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہیں زبردستی گاڑی میں ڈال کر لایا گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ میرا دل تڑپ گیا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو اچھی زندگی دینے کے لیے بہت خواب دیکھے تھے۔ وہ آزادی سے گھر میں رہتی تھی، مگر اب جہاں انہیں لایا جا چکا تھا وہاں انہیں صرف میری وجہ سے اپنی آوازیں دبا کر رہنا تھا۔ میں اپنی غلطی پر پچھتا رہی تھی۔ بیٹیوں کو ایک طرف لے جا کر میں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور ندامت سے سر جھکا کر ان سے معافی مانگی۔ میں نے کہا کہ میں نے یہ سوچ کر نکاح کیا تھا کہ اس کے بعد میں کبھی یہ غلطی نہیں دہراؤں گی، مگر شاید یہی میری آزمائش تھی جس میں ناکام ہو گئی۔ میری بڑی بیٹی رونے لگی، بولی آپ فکر مت کریں، جیسا کہیں گی ہم ویسا ہی رہیں گے۔ مگر اب اس گھر میں اکیلے رہنا ہمارے لیے دشوار ہو گیا تھا۔ پہلے بھی ہر بار جب آپ جاتی تھی محلے کے مرد ہمیں ہمدردی کے بہانے ہر وقت تنگ کرتے تھے۔ اس بار آپ کا قیام لمبا ہوا تو محلے والے سارے انکل رات کو ہمارے گھر چلے آتے تھے اور ہم سے کہتے تھے کہ تمہاری ماں کی غیر موجودگی میں تمہاری حفاظت کروں گا، اس لیے فکر مت کرو اور کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھے بتا دینا۔ میری بیٹیاں سہمی ہوئی تھی، جبکہ یہ سن کر میری سانس رکنے والی ہو گئی۔ اگر میں مزید دیر کر دیتی تو شاید میری معصوم بیٹیوں کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی، ان کے کچے ذہنوں میں ان مردوں کے ایسے رویے محفوظ ہو گئے تھے۔ میں رونے لگی۔ میری بیٹیاں خوفزدہ تھی، مگر مجھے کبھی کچھ بتایا نہیں تھا۔ انہیں میں نے اتنا اعتماد بھی نہیں دیا تھا کہ وہ مجھے اپنا خوف بتا سکے۔ میں نے بیٹیوں کو اچھی زندگی دینے کا خواب دیکھا تھا، مگر بری طرح ناکام ہوئی۔ میری ساری محنت اور قربانی ضائع ہو گئی۔ مجھے اس روز سمجھ آئی اللہ تعالیٰ نے اکیلی عورت کو عزت سے دوسرا نکاح کر دینے کا راستہ کیوں دیا تھا۔ اگر میں عدت کے بعد گھر بسا لیتی تو مجھ پر اور میری بیٹیوں پر یہ وقت کبھی نہ آتا۔ اس بوڑھے نے ہم ماں بچیوں کو پناہ دی، مگر چند دنوں میں ہی اس نے میرے ساتھ غلاموں جیسا رویہ رکھ کر مجھے میری نظروں میں گرا دیا۔ جب میری بیٹیوں نے میری اس گھر میں ایسی اہمیت دیکھی تو بالکل گمسم رہ گئی اور ایک کمرے میں قید ہو کر رہ گئی۔ ہمیں اس بوڑھے کے گھر رہتے ہوئے 7 ماہ ہو چکے ہیں۔ میرے پاس آزادی کی کوئی راہ نہیں بچی۔ اب میں صرف بوڑھے کی موت کا انتظار کرتی ہوں۔ اب یہی آخری راستہ ہے ہم ماں بیٹیوں کی آزادی کا۔